اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن ہے جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا۔ قرآن ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا، کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور قرآن چھڑواتا ہے۔ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہنم میں لے جانے کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا سسکیاں ختم ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ کوئی نفع نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے سورۃ ملک تبارک الذی، یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ الفاظ پہ غور کریں، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ، یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورت ملک پڑھے گا۔ یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے۔ سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی، سوچے تو صحیح۔ ختم قرآن ہے آج تسبیح خانے کا، 27 کی رات ہے، اور تسبیح خانے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار روز آتا ہے، آج کا اخبار کل کا پرانا ہو گیا، اور قرآن زندگی میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے یا 2 دفعہ لیا جاتا ہے۔ آج بھی پریس قرآن بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ جنات پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لے جاتے ہیں۔ ایک تو قرآن کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، دوسرا قرآن کوئی اخبار تو نہیں ہے کہ روز نیا اخبار ہوتا ہے، روز نئی چیز ہوتی ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ لیا جاتا ہے، 2 دفعہ لیا جاتا ہے، 4 دفعہ لیا جاتا ہے۔ پریسوں کی پریس قرآن چھاپ رہے ہیں، آج بھی کہاں جاتا ہے؟ میں نے کئی پرانے بابے، ایک نظام الدین صاحب ہوتے تھے بابا جی مٹھائی والے، کئی لوگوں سے میں نے تذکرے پوچھے مٹھائی کی دکان، اس نے کہا جی مٹھائی تو کھانے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، نمکین چیزیں لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اب پہلے میٹھی چیزوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں مٹھائی بکتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے یہ لے جانے والا انسان نہیں ہے۔ مٹھائی بہت کھاتا ہے جنات، اور قرآن جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔
अंदरून सिंध में रीछ और कुत्ते का मुकाबला हो रहा था। हमारी स्पीकर की टीम लगता है बेतवज्जे बैठी है, बेतवज्जे बैठी है, कुछ सो रही है। रीछ और कुत्ते का मुकाबला हो रहा था। उसूल यह होता है कि रीछ बांध दिया जाता है और 2 कुत्ते उस पर छोड़ दिए जाते हैं, और बाजों का ताकतवर कुत्ता हो तो एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता होता है। दोनों कुत्ते उसे, और कुत्ते की दुम अक्सर काट दी जाती है कि रीछ के हाथ में कुत्ते की दुम आ जाती है। कुदरत का निजाम यह है कि यह रीछ और कुत्ते की जंग हो रही थी। होते होते अचानक रीछ छूट गया, उसका रस्सा टूट गया और वो दौड़ा, और दौड़ के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में गया और सर पे कुरान लेके आया, और दोनों निचली टांगों से चलता चलता सर पे कुरान लेके आया, और लोगों की चीखें निकल गई, हाय निकल गई। कहता था, ऐ कुरान के मानने वालों, बेजुबानों को जलील न करो, बेजुबानों को जख्मी न करो, बेजुबानों की बोटियां न करो। हमारी दिल में कुरान की इतनी अजमत है। रीछ का पैगाम यह थे, रीछ का पैगाम था ये कि तुम्हारे दिल में इस कुरान की कोई अजमत नहीं। एक पुरानी बस्ती थी, गांव था, मैं मस्जिद में गया, जुमे का दिन था, मेरे साथ कुछ हजरात और भी थे। मैंने कहा मस्जिद को साफ करते हैं। मस्जिद के सहन में एक चटाई पड़ी थी, वो चटाई उठाई तो नीचे और थी, वो मिट्टी हुई पड़ती हो चुकी थी, वो उठाई तो नीचे और थी, यानी चटाई मिट्टी हो गई तो ऊपर और बिछा दी। साथ ही सामने गांव के चौधरी और बड़े का घर था। मुझे याद है उस वक्त करोला 86 खड़ी थी, और करोला 86 नई आई थी, 86 मॉडल करोला नई आई थी, मुझे याद है। और फिर नीचे से कीड़े मकोड़े बिच्छू चीजें निकलने लगी। सफों के नीचे उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी, और जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कुत्ता था, गर्मी सख्त थी, तो अंदर कुत्ते ने ठंडक की वजह से जमीन को ऐसे खोद के मिट्टी को उसने जगह बनाई हुई थी, कुत्ता भाग गया। अब मैंने कहा मस्जिद की सफाई करें। जब मस्जिद की सफाई की तो मैं कुरान पाक की तरफ गया, तो कुरान पाक में भीड़ों का छत्ता आया, भीड़ों का छत्ता था, भीड़ों ने छत्ता बनाया हुआ था। क्यों? आज तक किसी ने कुरान को हाथ नहीं लगाया। और कुरान पाक की नीचे जगह पे एक कुरान दूसरे कुरान पे चढ़ा हुआ था, उसके नीचे जगह थी। मैंने जो देखा ना, नीचे सांप है, सांप है। और कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया मेरी टांगों में कोई चीज लिपट रही है, और मेरी टांगों में सांप लिपट रहा था। हमने जाके मस्जिद के निजाम को खराब कर दिया। कोई चीज कहां छुपी हुई थी, कोई कहां छुपी हुई थी, कोई कहां छुपी हुई थी। सफाई के बहाने हर चीज निकलना शुरू हो गई। पांव वाले मैंने सांप को मार दिया। उस सांप के लिए मैंने उसको पहले कीला, और सांप को अगर कीलना हो तो इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुइदा। सूरत वस्समाई वत्तारिक की आखिरी 3 आयत, ये 11 दफा पढ़ के मैंने दम किया, और फिर मैंने उसको छोड़ा, दम हटाया। क्यों? बेबस करके नहीं मारना, ख्याल कर। उसके बाद फिर उसको मारा। अच्छा, ये वाकया हुआ हो गया, वाकया हुआ हो गया। कुछ ही अरसे के बाद उस गांव का जो बड़ा था, उसके घर की खवातीन मुझसे दवाई लेने आई। जी हम वहां से आई हैं फला। मैंने कहा हाँ, वो सामने मस्जिद है, ऐसे 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 कह रहे। हाँ, मैंने कहा उनकी गाड़ी करोला 86 है। उसने समझा इसको कश्फ होता है। आपको यहां तक भी पता चल जाता है? मैं कहा नहीं, मैं आया था। उन्होंने कहा पहुंची सरकार है। और उनके घर में जो मसाइब और मुसीबतें, और उनके घर में जो तबाही, और उनके घर में जो तकलीफें, और उनके घर में जो मुश्किलात, और उनके घर में नाकामियां कैसी थी? ऐसी जैसे तहस नहस कर दिया चीज, ऐसी। कुरान को देखना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान का रखना सवाब।
कुरान से दोस्ती, रमजान कुरान की याद दहानी है, रमजान कुरान से दोस्ती और ताल्लुक है। जो कुरान पाक उठाए उसे चूमे, रोज एक सफा पढ़ ले, एक वर्का पढ़ ले, एक रुकू पढ़ ले, आधा पारा पढ़, एक पाव पढ़ ले, एक अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान उठाए और कुरान उठाने के बाद उसमें उंगली फेरे और उंगली फेरते फेरते कुरान के ऊपर उंगली फेरे और उंगली फेरते फेरते या तव्वाब या करीम पढ़े, अल्लाह पाक उसके बख्त, बरकत, इज्जत, दौलत में इजाफा करेगा। और जिसको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़े, कुरान सुने, कुरान से दोस्ती, कुरान से ताल्लुक। कुरान के साथ अल्लाह ने निस्बत कायम की है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। एक दुर्वेश थे हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इलाहाबाद लियाकतपुर के साथ हजरत के मुरीदीन थे, हजरत के मुरीदीन थे। हजरत को ले गए घर, हजरत दुआ फरमा दें। अहले हदीस हजरत के सारे मुरीद थे, हजरत दुआ फरमा दें। हजरत एक घर में दुआ के लिए तशरीफ ले जाए गए, फिर दूसरे गए, तीसरे में, चौथे में। हजरत ने फरमाया, फकीरों, जब से कुरान छोड़ा है तुम्हारे घर में जिन्नात की गुजरगाहें बनी हुई हैं, लांघे बड़े पेन, गुजरगाहें बनी हुई हैं, और जिन्नात, खबीस, शयातीन तुम्हारे घर में आते हैं, बीमारियां छोड़ के जाते हैं, दुख छोड़ के जाते हैं, तकलीफें छोड़ के जाते हैं, गिलाजतें, खबासतें, झगड़े, नफरतें, बेबरकतियां छोड़ के जाते हैं। और फरमाया कैसे? कहा कि गंदी नाली में आपने देखा होगा गर्मियों में कुत्ता ठंडे पानी की वजह से गंदी नाली में बैठा हो और वो कुत्ता आपके सारे घर में फिरे, तो बोलो क्या गंदगी घर में होगी? हाँ, उस कुत्ते की गंदगी नजर आती है, इस खबासत और गिलाजत शैतानों की नजर नहीं आती। जब से कुरान छोड़ा है, कुरान के साथ दोस्ती हो, कुरान के साथ ताल्लुक हो, कुरान को उठाया जाए और कुरान को पढ़ा जाए। मोबाइल पे ना पढ़ें, कुरान को कागज वाले कुरान पे पढ़ें। मजबूरी कहीं है मोबाइल पे पढ़ लेना, कोई हर्ज नहीं, कागज में कुरान पे पढ़ें। यकीन जानिए, ये निस्बतों के साथ जहां आया है ना कुरान अर्श से, ये फिर कहेगा मौला ये अकेला नहीं जाऊंगा मैं। कुरान अकेला नहीं जाता। हदीस में आता है, मफहूम है, एक बंदा कब्र में जाएगा और उसके साथ कोई नहीं होगा, दाएं बाएं कोई नहीं होगा, सारे उसको छोड़ के चले जाएंगे। अचानक मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर आएंगे और एक मुश्किल कुशा आ जाएगा उसके पास। एक जवान आएगा, पूछेगा कौन? सारे अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, साथी जिंदगी में सब छोड़ गए, तू कौन? कहा मैं कुरान हूं। तू उठते पढ़ता था, सुनते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तूने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा, मैं तुझे आखिरत में, कब्र में नहीं छोड़ूंगा और हर मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब दूंगा। और अगर मुनकिर नकीर दाएं तरफ आएंगे ओट बन जाऊंगा, बाएं तरफ आके अजाब देंगे ओट बन जाऊंगा, सर की तरफ अगर बलाएं आएंगी ओट बन जाऊंगा, पांव की तरफ अगर नुकसान करेंगे हिफाजत करूंगा ऊपर नीचे से। वो मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब देगा, हिफाजत का सामान बनेगा। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया।
सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, फरमाया एक सिराने बैठेगा एक जवान खूबसूरत और ये पूछेगा तू कौन? कहा कुरान हूं, कुरान हूं। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया रुख पलटता है, पलटता सदियों के बाद है या सालों के बाद। ट्रकों के ट्रक पत्थर के डाले, जालों में बना बना के डाले, पर पानी की ताकत अल्लाह की ताकत है। आखिरकार दरिया का रुख शहर को उठा लिया सारा, अब कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया, लोगों ने अपनी कब्रों से मैयतें निकालनी शुरू की। दरिया का उसूल है नीचे से पानी काटता है, आखिर वो जमीन नीचे गिर जाती है। मैंने जाके राजनपुर से आगे रुझान है, रुझान से एक जगह मैंने देखा दरिया काट रहा था, रुख बदला। कोई आज से 30 साल पहले ये मैंने मंजर खुद देखा है। और मैं जहां खड़ा था ना, बंदा कहने लगा कहां खड़े हैं? नीचे से पानी ने काट लिया, अनकरीब ये सब नीचे गिर जाएगी। नीचे पानी ऐसे काटता है जमीन को, उसके बाद फिर मिट्टी गिरती है, फिर आगे बढ़ता है। कहने लगे हमारे यहां कहीं से पठान आ गया, पख्तून कहीं से आया, गरीब आदमी था, मस्जिद में आके रहने लगा। लोगों ने उस पठान का नाम रख दिया भंगी खान। भंगी कहते हैं जो गंदगी, घूम, गिलाजत, पखाना उठाए, उसका नाम भंगी खान रख दिया। कोई रोटी दे देता था, कोई कपड़ा दे देता था, सारा दिन कुरान पढ़ता था और वुजू खाने पानी भरता था, सफे अजान और मस्जिद सफाई, बस ये खिदमत थी उसकी। पता नहीं कहां का था वो पठान। मुझसे मलिक साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे कि भंगी खान भी मर गया, बूढ़ा हो गया था, मर गया। सब ने कहा कि लोग अपनी अपनी मैयतों को संभाल रहे हैं, भंगी खान लावारिस है, उसकी मैयत को भी संभाला जाए। अभी हम ये सोच ही रहे थे तो इलाके का बड़ा, उस इलाके का बड़ा एक था, बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा नाम था उसका, उसके बेटे आ गए। चचा अब्बा की मैयत के करीब पानी पहुंचने वाला है। अब्बे को फौत हुए, अभी भंगी खां और अब्बा करीब करीब फौत हुए थे। अब्बे की मैयत को निकालना है, रात का वक्त तय हो गया। कब्र खोली, लाइटें साथ थीं। कब्र को खोलते ही ना ऐसे देखा और बेटों ने कहा चाचा कब्र बंद करो, क्योंकि अब्बे की हालत बदल चुकी थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे कफन चोर आया, उसने तौबा की। मैंने पूछा लोगों की मैयतें? कहा कब्र में जाने के बाद कोई खिंजीर, कोई कुत्ता, कोई बंदर और कोई क्या बन जाता है अपने अमाल की वजह से, जिसको कुरान भी कहता है उलाइका कलानाम बल हुम अजल, कुरान भी कहता है। कहा हमने कब्र को छोड़ दिया, सुबह कब्र नहीं थी, पानी ले गया। भंगी खान की कब्र को खोला, भंगी खान की कब्र को जो खोला, भंगी खान वैसे पड़ा हुआ था। बोले असी मरना नहीं, गौ रुपया कोई हो। दुनिया ने भंगी खान कह दिया, अल्लाह ने कहा नहीं ये बादशाह खान है, ये शहनशाह खान है। दुनिया ने उसको भंगी खान कहा। मेरा अल्लाह कहता है नहीं, मेरी नजर में ये शहनशाह है, इसने सारी उम्र मेरे घर की खिदमत की है और कुरान की खिदमत की है। मिट्टी इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, और मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अल्लाह ने जानबूझ के ये मंजर दिया। खोलो कब्र, उधर भी खोलो उधर भी खोलो। जो बादशाह खान था उसकी कब्र खोलो, जो भंगी खान था उसकी कब्र खोलो। बादशाह खान की कब्र देखी नहीं गई और सुबह दरिया ले गया और भंगी खान को निकाला, बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ था, और उसके बाद उसको आगे मुंतकिल किया। हाँ, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं। कुरान से निस्बत, कुरान से मोहब्बत। और मुझे मलिक नवाज रहमत एक बात और भी कही, कहा कि हमने उन कब्रों को भी, कुछ कब्रें ऐसी हैं खोली कि वह तंदूर की तरह सुर्ख थी, इतनी उनमें आग थी। और कहा कि जो हामला खवातीन डिलीवरी के दौरान, ज़चगी के दौरान जो खवातीन मरी, उनका जिस्म बिल्कुल ठीक पड़ा था। मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा। कहने लगे क्योंकि सरकार मदीने वाले का फरमान है जो खातून ज़चगी के दौरान मरती है वो शहीद है। कुरान को रोज देखो, कुरान को रोज पढ़ो, कुरान की मोहब्बत हो, कुरान वालों से मोहब्बत हो।
दुनिया की सारी गलतियां कोताही होती हैं, कुरान वालों के तनख्वाहें। मुझे अभी यहाँ एक साहब बैठे हैं, कहने लगे मस्जिद का खादिम हूं, 4000 तनख्वाह देते हैं, 19 मन दाने साल के बाद देते हैं, 4000 महीना देते हैं। ये मेरा कसूर है। मैंने मस्जिद के खादिम से, मस्जिद के मुअज्जिन से, मस्जिद वालों से, उनसे आज तक उनको हदिये नहीं दिए, उनकी तवज्जो नहीं की। घर में कुरान कारी साहब पढ़ाने आते हैं, वही एक फिजिक्स पढ़ाने आता है, ओ लेवल ए लेवल का एक सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, उस एक सब्जेक्ट वाले को कितने पैसे देते हैं, और कुरान वाले के साथ हमारी क्या कदरदानी है, कुरान वाले के साथ हमारा क्या अदब है, और कुरान वाले के साथ हमारा क्या इकराम एहतराम, और उसकी तनख्वाह, उसका महाना कितना है। सोचो। ए लेवल ओ लेवल के एक सब्जेक्ट का क्या देते हैं। वो ए लेवल ओ लेवल तो दुनिया ही काम में नहीं आता। कहा डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं, डिग्रियां हैं, कारोबार नहीं, डिग्रियां हैं, रोजी नहीं। हाँ, वालो कुरान से मोहब्बत, कुरान वालों से मोहब्बत, कुरान से इश्क, कुरान का देखना, पढ़ना, समझना, बिन समझे और हर किसी का तर्जमा ना पढ़ो, हर किसी की तफसीर ना पढ़ो। ख्याल करना, मैंने बड़ों बड़ों को गुमराह होते देखा, दीन से हटते देखा, हर बंदे की तफसीर पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तर्जमे से कुरान पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा तर्जमा छोड़ तो कुरान पढ़। हाँ, तजवीद हो, जेर जबर ठीक हो, इसको सीख, कुरान पढ़। तर्जमा ठीक है, मैं इनकार कहां करता हूं, लेकिन कितने तर्जमे और तफसीरों ने लोगों को अल्लाह उसके हबीब से दूर कर दिया, अल्लाह उसके हबीब से दूर कर दिया। वरना कुछ लोग ऐसे हैं झूम झूम के पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। उन्हें कि आज खत्म है कुरान। मैं कुदरत का निजाम देखे, मैं यहां से गया, उस मस्जिदें बनाने की अल्लाह ने तौफीक दी है। उन्होंने कहा हजरत आप हमारी मस्जिद में हैं, एक पाव बाकी कुरान रहता है, पारा एक पाव पढ़ के हम दुआ कर देंगे। मैं शामिल हो गया। उस बंदा खुदा ने जो पढ़ना शुरू किया झूम झूम के, पहली रकात 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, वरत्तिल कुरान तरतील। वो तो कोई 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के बाद एक पाव खत्म हुआ। आप कहें बयान कर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरी अगली सफर है, मंजिल है। वजादिलहुम बिल्लती अहसन। हाल का अमर क्या है, हाल के अमर को पहचानना, इसका नाम दीन है। हाल का अमर क्या है, इसका नाम दीन है। तो मेरी दरखास्त आपसे है, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से उल्फत करें, कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। रहीम यार खान के करीब एक हिंदू खानदान रहता था, रहीम यार खान के करीब, और उसने अपने दोस्त को तार भेजी। इमरजेंसी एक होती थी, तार, उसको तार कहते थे। तार भेजी कि हम हिंदू फला जगह जमा हो रहे हैं, मैं वहां से नहीं आ सकता, मेरी बीवी ही है, बच्चा तो औलाद तो हुआ नहीं, उसको तो मेरा बचपन से बचपन का दोस्त नेक शरीफ है, उसको लेके फला जगह कैंप में पहुंचा देना। कैंप में मेरे और हिंदू भी रिश्तेदार हैं, वो हिंदू रिश्तेदार भी सारे इकट्ठे होके वहां पहुंच जाएंगे, वहीं इंडिया में पहुंच जाएंगे। तार पहुंचा तो वो तार लेके आया, उसका नाम मोहनी थी। तांगे वाले से बात की, थोड़ा बहुत जो सामान उठाना था उठाया। उठाने के बाद सामान, तो उसकी नीयत खराब थी, उसका जज्बा खराब था। उसने मोहनी को बिठा के किसी वीराने की तरफ गए। मोहनी बोली कि भाईजान ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता तो वो कैंप की तरफ नहीं जा रहा। मेरी सारी जिंदगी इसी रहीम यार खान में गुजरी है, इसी शहर में गुजरी, लेकिन वीराने में जाके उसने मोहनी पे हाथ डाला, वो चीखी। उसने उसकी आंखों में शीशे थे और तांगे वाला भी साथ शामिल था, हत्ता के कशमकश में कपड़े फट गए और वो उसके करीब ना आ सका। तो इसी असना में मोहनी के गले में एक तावीज था, उसने खींच के तावीज उसके सामने किया। मेरी औलाद नहीं है, मैं एक मुसलमान पीर के पास गई थी, उसने ये कुरान का तावीज लिख के दिया है, तुझे इस तावीज का वास्ता है, मुझे रुसवा न कर। लेकिन उसने तवज्जो ना की, उसने हाथ डाला ही था मोहनी के बाजू में, तो उसकी ग्रिप खत्म हो गई और वह नीचे गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। और मोहनी खौफजदा होके, मोहनी के हाथ में तावीज था कुरान का, खौफजदा होके कहने देखा
काला सांप था जिसकी डिप्टी थी, डस के जा रहा था और तांगे वाला थर थर कांप रहा था कि उसे अपना अंजाम नजर आया। तांगे वाले ने सर से अपना कपड़ा साफा उतारा, मोहनी को दिया, मोहनी ने जिस्म पे लपेटा, उसको तांगे में बिठा के और वहीं कैंप में छोड़ के माफी मांग के आया और उसकी लाश वहीं पड़ी थी और सांप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। क्यों? हिंदू भी कह रहा है, इस कुरान का वास्ता है, हिंदू भी कह रहा है ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की अजमत। मैं उस बंदे से मिलने गया, एक्सियन था, उसका भाई अब भी एमएनए है और अक्सर एमएनए बनता है, शरीफ आदमी है। मैं मिलने गया, मैंने कहा मैं आपके मुंह से ये वाकया सुनना चाहता हूं। कहने लगा मैं वापडा में एक्सियन, एक बंदे ने रिश्वत ली, मेरा छोटे कोई लेवल बंदे आ गए, उन्होंने कहा इन्होंने रिश्वत ली। मैंने कहा देख एतराफ कर ले, या छोटी सी सजा लिख दूंगा या इनसे माफी करा दूंगा। उन्हें मैंने ली ही नहीं, वो मशहूर था पैसे लेने में, मशहूर था। आखिर कहने लगा मैं कुरान उठाता हूं। मैं कहा ना उठा, कुरान ना उठा। उन्हें मैं कुरान उठाता हूं, खुद कुरान उठा के ले आया। कहने लगा मैं रिश्वत नहीं ली, और मुझे उस साहब ने बताया, उनका नाम अजमल साहब था। कहने लगा तीसरे दिन मैं उसका जनाजा पढ़ रहा था। जज बैठा था, जज बैठा था और जज के सामने 302 कत्ल का एक मुजरिम खड़ा था और वो बार बार कह रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे कुरान उठवा लें, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। जज कहता था कि तूने किया है या नहीं किया, लेकिन तुझसे कोई और खता हुई है। एक गधी है, गधी खूनम खून मेरे सामने आती है और इतना बड़ा मुंह है और कहती है अगर तूने इसको छोड़ दिया तुझे खा जाऊंगी। खौफनाक चेहरा है। बता, ये उसने बाद में बताया। उसने कहा बता कोई जुर्म। सोचते सोचते कहने लगा मैं घास काट रहा था, पड़ोस वालों के गधा गधी रोज आते थे, घास खाते थे। मैंने एक दफा रोका, 2 दफा रोका, फिर रोका। आखिर गधी के ऊपर की खाल पकड़ के मैंने दराती से जो ऐसे मारा, उसकी खाल को काट दिया और वो खूनम खून वहां पहुंची। बस उस बददुआ, बेजुबान की बददुआ लगी। मैं बेगुनाह इस मुकदमे में हूं। और जज कहने लगा सारे सबूत बेगुनाह हैं, पर मैं तुझे फांसी देता हूं, ये मुंह मुझे खा जाएगा। और वो फांसी पे लटक गया। कुरान, उससे मोहब्बत, उससे इश्क, उसके साथ ताल्लुक, उससे दोस्ती। यहां आज भी मियानी साहब का पीछे कब्रिस्तान है, हर रमजान में कुरान कब्र से पढ़ा जाता है, मैंने खुद सुना है। और जो शबे कदर, लैलतुल कदर होती है, उसमें सूरत रहमान पढ़ी जाती है। इस बात की मशहूर निशानी है, इस कब्र में जब सूरत रहमान पढ़ी जाएगी वो रात लैलतुल कदर होगी, शबे कदर होगी। कई बुजुर्गों ने अपने वालिद के बारे में, हजरत वली हसन टोंकी थे, उन्होंने लिखा कि मैं फौत हो गया मेरे वालिद, उनकी कब्र से। हजरत मूसा रूहानी थे, वो कहने लगे कि मेरे वालिद की कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज के बाद फैसला करें, मैं भी आप भी कुरान से दोस्ती करें, उठाया करें, इसको देखा करें, इसको छुमा करें, इसको पढ़ा करें, रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, रोज पढ़ें। जिंदगी में बरकतें और बहारें आएंगी, जिंदगी में इज्जतें और शान और शौकतें आएंगी और हमेशा की खैरें और बरकतें आएंगी। आपको जाते हुए 2 तोहफे दे रहे हैं, हुरूफ तहज्जी का ये नक्श, सारी जिंदगी का तोहफा, और साथ उसका तरीका। ये 2 कागज आपको मिले होंगे। बहुत बेहतरीन तोहफे हैं, बहुत बाकमाल तोहफे हैं जो आपको साथ दे रहे हैं। जिनको अगर नहीं मिला तो वो हजरात इस्तकबालिया से ले लें। बहुत कमाल तोहफे हैं, हुरूफ तहज्जी का नक्श और ये उसका तरीका। और हमारे जो पूरे रमजान में सूरत कौसर के जो अमल हैं, पैकेज हैं, वो भी इसी थैली पे करें। ये बहुत बाबरकत थैली, बहुत सादतमंद थैली है और अल्लाह की नेमत है। इसको दाएं हाथ में थैली रखेंगे और दाएं हाथ में कटोरा रखकर, और हम सिर्फ 45 बार वाला आखिर एक दफा दरूद शरीफ अपने गमों, अपने दुखों, अपनी मुश्किलों, अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों का तस्वर करते हुए अब हम सारे बैठ के इज्तिमाई तौर पर
11 बार सूरत कौसर पढ़ें। इस बरकत वाली थैली पे हमने दम करना है और ये इज्तिमाई अमल करना है। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ और 11 बार पढ़ें, सूरत कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। जिनके पास थैली नहीं वो पटरे को सामने रख के पढ़ लें, पढ़ें इन्ना अतैनाकल कौसर। इन्ना अतैनाकल कौसर। मुबारक हो बरकत वाली थैली, बरकत वाला निजाम सारा। मुजरिमाना हाजिरी है, रोज मुजरिमाना हाजिरी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा और अमल है। मुजरिमाना हाजिरी में रोज अल्लाह के सामने मुजरिम बन के, फरियादी बन के, रोज अल्लाह के सामने कि अल्लाह हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं, और हम मुजरिमाना हालत बना के तेरे सामने तेरे मुबारक नामों से मदद मांगते हैं। हम अपने आप को मुजरिम पेश कर रहे हैं, तू शहंशाह और करीम है। तो मुजरिमाना हाजिरी में अल्लाह के सामने पेश होके पढ़ेंगे हम अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अपने बदन पे, पूरे बदन पे फेर। हमारा अब सूरज ग्रहण के अमल में आपकी खिदमत में उसकी वजाहत अर्ज करूंगा। सूरज ग्रहण के 3 अमल हैं। मुझे मेरे अहबाब बता रहे थे कि बाज लोगों ने नेट पे यही अमल लिए हैं और बाकायदा उन्होंने फीस रखी है, पैसे रखे हैं। इतने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतना माल लगेगा सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल कराएंगे। हत्ता कि आपके 10 रुपए गुड़ की डली पे लगे, मुझे वो भी तकलीफ होती है कि 10 रुपए गुड़ की डली पे क्यों लगे। तस्बीह खाने को सदा मेरा रब देने वाला बनाए, देने वाला बनाए, अल्लाह देने वाला बनाए, और अल्लाह हमेशा ऊपर वाला हाथ इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज ग्रहण के अमाल हैं। आप चाहे तीनों कर लें, चाहे कोई एक कर लें, बहुत ताकतवर अमल है। एक बात बता दूं, जो सूरज ग्रहण के अमल करेगा बहुत बलाएं आफतें आती हैं। आखिर कोई वजह तो थी ना, जब सूरज को ग्रहण लगती थी, मेरे हुजूर आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो मस्जिद की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे। मस्जिद की तरफ मेरे हुजूर मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होते थे और मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होके मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। परसों है, मुझे वक्त उनसे मंगवाएं, वक्त तो बताना चाहिए था। ये सूरज ग्रहण का कागज आपके पास होगा, मिल गया होगा। परसों है, आपको दिया इसलिए जा रहा है ताकि आप पहले से इसकी तैयारी करें, और यहां भी आप कर रहे हैं, ज़ाहिर आप यहां का मजमा यही करेगा।
اور جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے. جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے. جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے. ایک بات پھر عرض کروں، سورج گرہن کا عمل کرنے والا بلائیں، آفتیں، مصیبتوں سے بچتا ہے اور بہت زیادہ تکلیفوں سے بچتا ہے. اس کی نسلیں، سورج گرہن کے عمل کرنے والے کی نسلیں لولی لنگڑی اپاہج نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. یہ میں تاریخ کو اٹھا کے بتا رہا ہوں اور پورے واقعات ہیں میرے پاس. اور سورج گرہن کے عمل کو کرنے والا اللہ پاک اس کی نسلوں میں ولایت کے تاجدار، سخاوت کے تاجدار اور داناؤں کے تاجدار اللہ بناتا ہے. اور اس کو اللہ خود مصیبتوں پریشانیوں سے دور کرتا ہے. اللہ اس کی تکلیفیں ختم کرتا ہے. اللہ اس کے دکھ ختم کرتا ہے. سورج گرہن کے عمل کبھی نہ کرنا بھولیے گا. پیسے لے رہے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. بہرحال جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور ہمارے منہ میں صرف ایک لفظ ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین. یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار. یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. اللہم واقعتا کواقعۃ الولید. اے اللہ رمضان کی ساری خیریں عطا فرما اور رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما. حروف تہجی کی برکتیں عطا فرما، حروف تہجی کی خیریں عطا فرما، حروف تہجی کا نور عطا فرما. اور صلاۃ کن فیکون جنہوں نے پڑھی اور پڑھتے رہیں گے، جو مرادیں دل میں مانگی، جو چاہتے دل میں مانگی، جو مرادیں دل میں مانگی، اللہ قبول فرما. اور جنہوں نے میری نسلوں تسبیح خانے کے لیے 100 رکعتیں پڑھی، اس سے بھی زیادہ پڑھی، قبول فرما، قبول فرما. اور اس کی برکتیں انہیں بھی عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما اور سارے آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما. اے اللہ تونگری کشکول کی برکتیں عطا فرما اور تونگری کشکول کے عمل کو قبول فرما اور قبول فرما. اور یا قادر ہو یا نافع کی ہمیشہ کی برکتیں عطا فرما. یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر یا نافع ہو. اللہ اس کی برکتیں، اللہ اس کی خیریں عطا فرما. اور 4 رنگی تعویذ کو قبولیت عطا فرما. یہ وہ نقش اور تعویذ ہیں جو صدیوں سے آزمودہ ہیں. اور برکت والی تھیلی میں سدا اپنی برکتیں رکھ، سدا اپنی برکتیں رکھ، سدا اپنی برکتیں رکھ. اور سورت رحمان کے دھاگے میں سورت رحمان کا نور داخل کر دے اور برکتیں داخل کر دے، اس میں شفا داخل کر دے، اس میں اپنی عطا داخل کر دے. اے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے آنسو بہ رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کی ہچکیاں اور سسکیاں ہیں اور کتنے پردیسی ایسے ہیں جو گھروں کی آس لگائے بیٹھے ہیں. اماں کا فون آیا، ابے کا فون آیا، بچی کہنے لگی ابا میرے لیے آنا تو غبارہ لیتے آنا اور میرے لیے آنا تو ایک گاڑی لینے آنا. کہنے لگا بیٹی میں تو بخت لینے آیا ہوں، میں تو برکت لینے آیا ہوں، میں تو یہاں خیریں لینے آیا ہوں. تو ساری عمر پھر برکتوں میں کھیلے گی. بیٹی تو نکرانی نہیں بنے گی تو رانی بنے گی، بیٹی تو نکرانی نہیں بنے گی تو رانی بنے گی. مولا یہ پردیسی انہوں نے پورا رمضان چٹائیوں پہ گزار دیا اور پورا رمضان اپنے دل پہ جبر کیا اور صبر کیا. ان کے دل نے بہت امیدیں مانگی، ان کے اندر نے بہت امیدیں چاہی، ان کی طبیعت میں بہت ولولے اٹھے، ان کی زندگی میں بہت خواب دیکھے. اللہ سارے خواب انہوں نے چکنا چور کر دیے. تیرے نام کے لیے بھوکے رہے، تیرے نام کے لیے پیاسے رہے، تیرے نام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا.
نہیں پر بات چھوڑا۔ اے میرا اللہ ان پردیسیوں کی آج دعائیں قبول کر لے، اور ان کی حاضری قبول کر لے، اور ان کے سارے عمل قبول کر لے، اور خضری تعویذ کی تقسیم ہوئی ہے جن کو نہیں ملا ان کو بھی دے دے، اور جن کو ملا ہے ان کو برکتیں، خیریں، وسعتیں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں دے، اور جنہوں نے آخری عشری کی تحریریں لکھی ہیں اللہ ان کے قلم کے ایک ایک لفظ کے بدلے بہت پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما، ان کے قلم کے ایک ایک حرف کے بدلے ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ان کے قلم نے جتنے نقطے دیے ہر نقطے کو جنت کا ایک محل بنا، اور جتنے میں نے ان کو 3 عمل بخشے ہیں اللہ ان کو میری نسلوں کے لیے بھی ان کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، خیروں کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا، اور قبولیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو پورے رمضان میں یہاں خدمت کرتے رہے ان کے پہلو نہیں سو سکے، کسی کی 1 گھنٹہ نیند، کسی کی 2 گھنٹہ نیند، بس نیند سے بھی تھکے رہے اور مخلوق کی خدمت سے بھی تھکے رہے، برتن دھوتے رہے، جھاڑو دیتے رہے، اور آنے والے مجمع کی سنتے بھی رہے، سہتے بھی رہے، سنتے بھی رہے، سہتے بھی رہے۔ اللہ ان خدمت والوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ آج جن کے نکاحوں ان کے گھر آباد کر دے، اور جن کے نکاحوں میں تاخیر ہے ان کے لیے جوڑے عرشی بنا دے، عرشی بنا دے، عرشی بنا دے۔ ہماری اٹھنے والی دعائیں قبول کر لے، ہماری آمین قبول کر لے، ہمارے من کے اندر کی چاہتیں قبول کر لے، ہمارے جذبے قبول کر لے، اس تسبیح خانے کی خیروں کو قبول کر لے، اس تسبیح خانے کو قیامت تک خیر بانٹنے والا بنا دے۔ دائیں بائیں سے وسعت دے دے، دائیں بائیں سے برکت دے دے، دائیں بائیں سے عافیت دے دے، اور دائیں بائیں سے خیریں دے دے۔ اللہ ہمیں خیریں دینے والا بنا، خیریں بانٹنے والا بنا، امن بانٹنے والا بنا، رواداری اور محبتوں والا بنا۔ آج بڑی مبارک رات ہے، پردیسیوں کا مجمع ہے، پردیسیوں کا مجمع ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، نیند کی غنودگی میں گر رہے ہیں، سو گئے ہیں۔ ان بچوں کی برکتوں سے ہمیں آج اے سخی آقا اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور وسعتیں دے دے، اور کسی بے اولاد کی جھولی بھر دے، کسی نامراد کو بامراد کر دے، کسی بے گھر کو گھر دے دے، کسی دے در کو در دے دے، سب کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مرادیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، جو برکتیں لے کے آئے ہیں انہیں عطا کر دے۔ اے اللہ جو انہوں نے نقش اور عمل کیے سب قبول کر لے، اور سارا دن تیرے نام کو لیتے ہیں قبول کر لے۔ اے اللہ ان کا عید کے بعد جائیں گے، پر جانے سے پہلے ایک وعدہ کر دے، ان کو خالی نہ بھیجنا، ان کو خالی نہ بھیجنا۔ اور بے شمار خوش قسمت ہیں جو عید کے بعد تسبیح خانہ رہیں گے، اے اللہ ان کو خالی نہ رہنا، ان کو خالی نہ بھیجنا۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانہ رہیں گے اور تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کا جذبہ لے کے رہیں گے۔ اے اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان سب کو بامراد کر دے، قرضے دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، مشکلات حل کر دے، اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے کر دے، اولاد کے غم سے بچانا، اولاد کے دکھ سے بچانا، ذلت علت قلت سے بچانا، علت علت قلت سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا، اور اے اللہ دل کی دکھ سے بچانا۔ بے بس نہ کر دینا، کبھی 100 روپے کا مجبور نہ کر دینا، کبھی پیسے کا مجبور نہ کر دینا۔